Well, it's the most explosive and agenda-setting interview of UP Chief Minister Yogi Adityanath amid the Mahakumbh in Prayagraj and the non-stop politics happening around it. Speaking exclusively to Group Editor-in-Chief Navika Kumar, Yogi Adityanath sent out his strongest message to the Kumbh beaters. The UP Chief Minister also responding to Akhilesh Yadav's party's chhapri insult, saying that those who were notorious for appeasement politics have also been forced now to take the holy dip at the ongoing Kumbh. On Kharge's remarks, which is the Congress party president, who has asserted that very soon the senior Congress leader will also be seen taking a dip at the Mahakumbh. Here are the certain excerpts that will play out in this tell-all interview of the UP Chief Minister. योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहां पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टैच्यू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है, हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी। योगी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप और मोदी जी चाहे सैकड़ों डुबकियां लगा लें, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। किन पापों की बात कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है, उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संबल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। Let's delve more into it as far as very strong statements that are being made by the UP Chief Minister, as Akansha is joining us from Prayagraj, and we also have Pragya joining us this afternoon. Good afternoon to both of you. Pragya and Akansha joining us live, because Akansha, we have seen as far as when the Mahakumbh began, we have seen Yogi Adityanath take the dip. We have seen top seers' sons taking the dip. We have seen even when it comes to the Union Home Minister taking the dip. And then we also saw the former UP Chief Minister Akhilesh Yadav take the dip. Will it be now next Mallikaarjun Kharge, as being predicted by the UP Chief Minister? Well, that is something that remains to be seen. But as far as Mahakumbh is concerned, UP Chief Minister Yogi Adityanath has strongly reacted to the statements that have come from Samajwadi Party chief and also their leaders in the last 2 weeks. He has said that he has no expectations from the people of people who in fact they hate Sanatan Dharma or they are against the devotion of the people. He also went on to say that there are a few people who play vote bank politics and are against the astha of the people, and after that still they come to Triveni for holy dip. So I have a lot of people who have come from different parts of the country to take holy dip. Let me go across and speak to a few of them. कहाँ से आए हैं? जोधपुर से।
काफी पॉलिटिक्स हो रही है महाकुंभ को लेके भी। ऑपोजिशन का कहना है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। किस तरह देखते हैं डेवोटीज इस चीज को? मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हम उतरे हैं यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर्स हमारे स्वागत के लिए भी खड़े थे। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, रोडें भी साफ है। बहुत नेगेटिव रील्स भी आ रही है, जैसे इंटरनेट पे आती है, इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव रील्स भी आ रही है। बस वैसे ही देख रहे हैं हम। अभी हम जा रहे हैं, करना है अभी स्नान। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रही है। आप लोग यहाँ स्नान के लिए आए, किस तरह देखते हैं? पिछले 2 हफ्ते में काफी पॉलिटिक्स हुई है इस चीज पे, मैनेजमेंट को लेके हो गया और काफी और मुद्दों पे। जहां तक मुझे लग रहा है, मेरे को कहीं पॉलिटिक्स वगैरह नहीं लग रहा है। जहां तक हम देश सभी धर्म के हिसाब से आए हैं और धर्म के मुद्दे के हिसाब से व्यवस्था भी बढ़िया की गई है मोदी की सरकार ने, और इसने व्यवस्था बढ़िया की रखी है। कहीं पे well, mainly we have seen as far as the arrangements or the Vyavastha has been one of the talking points there as far as when it comes to the opposition parties. In particular, the former Chief Minister has been raising over the ongoing Mahakumbh. Let's talk about the UP Chief Minister more, because in a sharp response that has now come hours after Mallikarjun Kharge, the Congress party president, undermined the significance of Kumbh, saying that by taking a dip, the Union Home Minister and the Chief Minister, and even now calling as far as the Prime Ministers as sinners, saying that will it help eradicating poverty by taking a holy dip? This is what he had said. मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। Well, after the UP Chief Minister responds to the Kumbh beaters, now it seems that the allies are sending reactions over when it comes to close to the ranks, slamming the UP Chief Minister as they seem to be now doubling down on the Chapak Chaiya attack that has now been made. Of course, this is first when it comes to the response that came in from the UP Chief Minister. This is how they seem to be countering him. हाल में पता चला है कि जब पढ़ाई करते थे तो ये बसें और इनके ट्रक चलते थे वहां उत्तराखंड में, और यही देखते थे। तो इनका माइंडसेट जो योगी आदित्यनाथ जी का है वो बिजनेस वाला है। पहले ये बस और ट्रक चलवाया करते थे अपने किशोरावस्था में जब पढ़ाई कर रहे थे। तो आप हमें कुंभ का पाठ मत पढ़ाइए। हमारी सरकार बहुत बार रही है, हमारे नेता बहुत बार कुंभ नहाए हैं। ये बताओ कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो छप्पा छाई वाला नहान करती है कुंभ में जाके और अपना मजाक उड़वाती है। कल वैसे गृह मंत्री जी ने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। कल तो उन्होंने अपने आप को साधु महात्माओं महामंडलेश्वरों से स्नान करवाया है, तो ज्ञान तो आपको दे दिया है और आप बड़े साइडलाइन थे। इसलिए कम से कम अब समाजवादियों पे अटैक मत करिए, सही निशाना लगाइए जिससे आगे का रास्ता आपका साफ हो। पता नहीं क्यों बाबेला मचा उस बयान से इस देश की हालत विचित्र बना के रख दी है लोगों ने। कुंभ पहली बार नहीं हुआ, ना आखिरी बार हुआ। बीजेपी नहीं थी तब भी कुंभ था, बीजेपी नहीं होगी तब भी कुंभ होगा।
कुछ चीजें धार्मिक व्यवस्था के साथ, परंपरा के साथ चलती रहती हैं। अब इस परंपरा पे आप कॉपीराइट चाहते हो, कौन कहां डुबकी लगाएगा, कितनी बार डुबकी लगाएगा। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच एक दीवार होनी चाहिए। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच अगर दीवार नहीं होगी तो संवैधानिक मूल्यों का नुकसान होगा। Well, Akansha, coming back to you on that, because the counters or the reactions that are now coming in over the statement made by the UP Chief Minister, is the question being raised over Mahakumbh or the question being taken over the credit exactly when it comes to Mahakumbh? They say that it is not happening for the first time. Previous governments have also done better arrangements, especially for the devotees. So who exactly wants what, especially when it comes to the ongoing political discourse? Well, absolutely, Amita. As far as Samajwadi Party is concerned, they have drew parallel between the last Mahakumbh and this particular one, be it the expenditure or general comparison. They have said that during their tenure, they had spent 800 to 1300 crore rupees on their Mahakumbh and the facilities were good. And this time, more than 10,000 crore rupees have been spent on Mahakumbh Mela and still there's no facility. In the last 2 weeks, Amita, we've been witnessing war wars between Bharatiya Janata Party, Samajwadi Party and the Congress Party here in Uttar Pradesh as far as Mahakumbh Mela is concerned. They have questioned the management here, even the number of devotees who have come here, and we have seen several statements coming from the opposition parties, but the most prominent one was the one that was made by Congress President Mallikarjun Kharge yesterday, wherein he said, will taking a dip in Sangam, will that eradicate poverty in the country or not? So let me take in a view from people who have come here from different parts of the country. कल काफी बड़ा बयान आया था कांग्रेस की तरफ से कि क्या डुबकी लेने से पावर्टी खत्म होती, क्या गरीबी दूर होती है उससे? आप यहाँ डुबकी लेने आए, किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को? हम स्टेटमेंट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि डुबकी लेने से पॉवर्टी खत्म होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका धर्म है, और इफ वो इसमें बिलीव करते हैं तो हो सकती है मैम, क्योंकि बिलीव इज द पावर। अगर वो मानते हैं तो हो सकता है मैम, बाकी देखा जाए। आप किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को कि कांग्रेस के द्वारा बोला गया कि डुबकी लेने से क्या गरीबी खत्म होती है, लोगों को जॉब चाहिए, डुबकी नहीं चाहिए, आप खुद डुबकी लेने आए, किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट? मैम, डुबकी लेने से मैम जॉब तो आपको नहीं मिल सकती मैम, वो आपके पर्सनल डिसीजन है मैम। मैं जोधपुर से आया हूँ, मुझे उस ये है कि भाई डुबकी मारनी है, मैं जॉब के पर्पज से नहीं आया। और मैम जब हम ये करवा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हो, तो मैम जॉब्स तो क्रिएट हुई हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बस हुई है। और मैम रही बात मैम कल अखिलेश जी वाली, मैम उन्होंने बोला था अरेंजमेंट कुड बी बेटर। मैम अंडर हिज लीडरशिप लास्ट टाइम इन 2013 व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुंभ करवाया था, तो मैम वो और योगी जी मिलके इसको और बेटर कर सकते हैं। मैम उनके पास एक्सपीरियंस था, योगी जी के पास अभी करवाया है, तो how the Janta, the people there at the Mahakumbh seem to be reacting, saying that this is all about faith, this is all about their astha. Thank you very much, Akansha, for joining in. Of course, when it comes to this tell-all agenda-setting interview, the complete full interview of the UP Chief Minister Yogi Adityanath at Navbharat ka Mahakumbh only on Times Now will be played out at 9 p.m. Do not forget to tune in.